प्यारे दोस्तों, आज सितंबर 14 देश भर में हिंदी दिवस समारोह मनाते हैं। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने निर्णय लिया था कि भारत की राजभाषा हिंदी ही होगी। इस निर्णय को महत्व देने के लिए और हिंदी के उपयोग को प्रचलित करने के लिए साल 1953 के उपरांत हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। आज श्री शंकरा ओरिएंटल हायर सेकेंडरी स्कूल के हिंदी दिवस समारोह के इस शुभ अवसर पर मेरे प्रिय छात्रों, अध्यापक, अनध्यापक बंधुओं, अभिभावकों और देशवासियों सभी को मैं अभिनंदन और शुभकामनाएं देती हूँ। अब मैं एक छोटी कविता सुनाने चाहती हूँ। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी। जिसने पूरे देश को है जोड़ा, वो मजबूत धागा है हिंदी। सरल शब्दों में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है हिंदी। भारत माँ की शान है हिंदी, हिंदुस्तान का मान है हिंदी। वाणी का वरदान है हिंदी, हम सबका आधार है हिंदी। सरल शब्दों में कहा जाए तो हर भारतीय की पहचान है हिंदी। भारत को एकता की कड़ी में बांधने वाली हिंदी सीखें, सिखाएं। जय हिंद, जय हिंदी। अब हमारे प्राचार्य श्रीमती प्रविदा जी, प्रधान अध्यापक श्री वीटी शंकरनारायणन जी, अध्यापक अभिभावक संघ के अध्यक्ष श्री प्रकाशन जी, विद्याभ्यास स्थायी समिति के अध्यक्ष श्री हरि जी आदि की आशीर्वाद सुने। ഇന്ന് സെപ്റ്റംബർ 14 ഹിന്ദി ദിനം. 1949 സെപ്റ്റംബർ 14 ഇന്ത്യയുടെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷയായി ഹിന്ദിയെ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. അതിനുശേഷം എല്ലാ വർഷവും സെപ്റ്റംബർ 14 ഹിന്ദി ദിനമായി വിവിധ പരിപാടികളോടുകൂടെ ആഘോഷിച്ചു പോരുന്നു. ഹിന്ദി രണ്ടാം ഭാഷയായി എടുത്തു പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഇത്തരം ദിനാചരണങ്ങൾ വളരെയധികം സഹായകമാണ്. ലോകത്തിൽ തന്നെ ഉപയോഗത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഏറ്റവും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഭാഷകളിൽ ഒന്നാണ് ഹിന്ദി. ഹിന്ദിയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ അറിയാനും മനസ്സിലാക്കാനും പഠിക്കാനും ആദരിക്കാനും എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഭാഷാ പഠനത്തിലൂടെ കഴിയട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ, എല്ലാവർക്കും ഹിന്ദി ദിനാശംസകൾ. നമ്മുടെ രാഷ്ട്രഭാഷയായ ഹിന്ദി പഠിക്കുക, പ്രയോഗിക്കുക, പ്രചരിപ്പിക്കുക. ജയ് ഹിന്ദ്. പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ, അധ്യാപകരെ, രക്ഷിതാക്കളെ, ഇന്ന് സെപ്റ്റംബർ 14 നമ്മൾ ഹിന്ദി ദിനമായി ആചരിക്കുകയാണല്ലോ. 1949 സെപ്റ്റംബർ 14 ഹിന്ദിയെ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രഭാഷയായി നമ്മുടെ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ആ ദിവസത്തിൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ടാണ് എല്ലാ വർഷവും സെപ്റ്റംബർ 14 നമ്മൾ ഹിന്ദി ദിനം ആചരിക്കുന്നത്. ഈ വർഷം നമ്മുടെ ശ്രീ ശങ്കര ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ പരിപാടികൾക്കും ആശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്ക് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. പ്രിയമുള്ളവരെ, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എല്ലാ വർഷവും സെപ്റ്റംബർ മാസം 14 ഹിന്ദി ദിനാചരണമായി ആഘോഷിക്കുന്നത്. 1949 നമ്മുടെ ഭരണഘടനാ ശില്പി മഹാനായ അംബേദ്കർ നേതൃത്വം കൊടുത്ത ഭരണഘടനാ സമിതിയാണ് ഹിന്ദി ഭാഷയെ രാഷ്ട്രഭാഷാ പദവി നൽകി ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നത്. ആ ദിനത്തിൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഹിന്ദി ദിനമായി എല്ലാ വർഷവും സെപ്റ്റംബർ മാസം 14
നമ്മൾ ആഘോഷിച്ചു വരുന്നത്. ഹിന്ദി എന്ന വാക്ക് ഒരു പേർഷ്യൻ ഹിന്ദ് എന്ന വാക്കിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത്. എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ലളിതമായ ഭാഷയാണ് ഹിന്ദി. നമ്മുടെ ഭാരതത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക സവിശേഷതയാണ് നാനാത്വത്തിൽ ഏകത്വം. ഈ സവിശേഷത കാത്തുസൂക്ഷിക്കുവാൻ ഭരണകാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനു വേണ്ടി അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് കൂടുതൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷയായ ഹിന്ദിയെ ഭരണഭാഷ അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രഭാഷയായി തിരഞ്ഞെടുത്തത്. ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ സംസാരിക്കുന്നതും ഹിന്ദിയാണ്. ഹിന്ദി ഭാഷയെ സ്നേഹിക്കുവാനും ആദരിക്കുവാനും മറ്റുള്ളവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുവാനും ചെയ്യണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഹിന്ദി ദിനാചരണ ആശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. शबरी पीटीबी स्मारक हायर सेकेंडरी स्कूल के हिंदी अध्यापक आदरणीय श्री डॉक्टर अजित जी की वाणी सुने. लक्किड़ी श्री शंकर ओरिएंटल हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रधान अध्यापक, उसी प्रकार इस विद्यालय के प्रिय छात्रगण, मेरे प्रिय हिंदी साथियों, प्रिय छात्रों, सबको मैं प्रणाम देता हूं. मैं अजित अरकापुत्तूर शबरी पीटीबी स्मारक हायर सेकेंडरी स्कूल का हिंदी अध्यापक हूं. आज सितंबर 14 है. हम सबको मालूम है सितंबर 14 की विशेषता क्या है. इस दिन हम हिंदी प्रेमियों के लिए बहुत बड़ा गर्व का एक दिन है, क्योंकि आज हमारा दिन है, हिंदी दिन है. सितंबर 14 हिंदी दिन के रूप में हम मनाते हैं. हिंदी दिन की विशेषता क्या है उसके बारे में कुछ कहना मैं चाहता हूं. हिंदी दिन या हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है. 14 सितंबर 1949 को भारत का संविधान सभा ने यह निर्णय लिया कि हिंदी भी केंद्र सरकार की आधिकारिक भाषा होगी, क्योंकि भारत में अधिकतर क्षेत्रों में ज्यादातर हिंदी भाषा बोली जाती थी. इसलिए हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का निर्णय लिया और इसी निर्णय के महत्व को प्रतिपादित करने तथा हिंदी को प्रत्येक क्षेत्र में प्रसारित करने के लिए वर्ष 1953 से पूरे भारत में 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है. दोस्तों, हमारे देशीय नेताओं ने, जैसे हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, चाचा जी, नेताजी, ऐसे देशीय नेताओं ने स्वतंत्रता संग्राम करते समय हमारे लिए एक भाषा की आवश्यकता के बारे में सोचा था. महात्मा जी ने कहा, हमारे भारत में एक भाषा की, एक औद्योगिक भाषा की अनिवार्यता है, आवश्यकता है. इसलिए हम हमारे भारत के कई भाषाओं में एक भाषा को चुन लेना है. अधिकांश लोग जो बोलते हैं वो ही चुन लिया. हमारे भारत में अधिकांश लोग हिंदी बोली जाती थी, इसलिए हिंदी भाषा को
हमारे औद्योगिक या राजभाषा के पद दिया। वास्तव में हिंदी हम राजभाषा के रूप में नहीं मानते हैं। हमारी राष्ट्रभाषा है हिंदी। हिंदी हमारी एकता बढ़ाने की कड़ी है। भारत में कई तरह के लोग निवास करते हैं। इसमें कई धर्मों में विश्वास रखने वाला, कई संस्कृति में जीवन बिताने वाला, कई राजनीतिक दलों में विश्वास रखने वाला और कई तरह के लोग, कई तरह के वेशभूषा पहनने वाले, कई तरह के भोजन खाने वाले, इसी प्रकार कई तरह के भाषा भी बोलने वाले भी हैं। लेकिन हम सब भारतीय हैं। विविधता में एकता का पालन करना हमारा लक्ष्य है। यह हमारे देश की एक विशेषता है, विविधता में एकता। ये विविधता में एकता कायम रखने के लिए हमें हमारे भाईचारों से हम आपस में बातचीत करना चाहिए, आपस में एकता बढ़ाना चाहिए। इसके लिए हिंदी की आवश्यकता है। हिंदी पढ़ना पढ़ाना हमारा कर्तव्य है। इकबाल जी ने इसे कहा है एक गीत में, हिंदी है हम, हिंदी है हम, हिंदुस्ता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्ता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। कितना मशहूर प्रसिद्ध गीत है यह। इतना कहकर मैं आपके विद्यालय के हिंदी दिन कार्यक्रमों को शुभकामनाएं देता हूं, आशीर्वाद देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी। राज्यस्तरीय अध्यापक पुरस्कार विजेता मलप्पुरम जिले के चापनंगाड़ी PMSA हायर सेकेंडरी स्कूल के हिंदी अध्यापक आदरणीय श्री राजीवन KP जी के शब्द सुने। പാലക്കാട് ലക്കടി ശ്രീശങ്കര ഓറിയൻ്റൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം. ഇന്ന് സെപ്റ്റംബർ 14 ഹിന്ദി ദിനം. ഹിന്ദി ഭാഷ ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട ദിനം. ഹിന്ദി ഭാഷയെ സ്നേഹിക്കുകയും ഹിന്ദി ഭാഷ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും കടമയാണ്. ഹിന്ദി എന്ന ഭാഷയിലൂടെ 28 വർഷത്തെ ഔദ്യോഗിക സർവീസ് പൂർത്തിയാക്കിയ എനിക്ക് ഈ വർഷത്തെ സംസ്ഥാന അധ്യാപക അവാർഡ് നേടിത്തന്നത് ഈ ഭാഷയിലൂടെ എൻ്റെ അധ്യാപനം പൂർത്തിയാക്കിയത് കൊണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹിന്ദി ഭാഷയോട് തീർത്താൽ തീരാത്ത നന്ദിയും കടപ്പാടും എന്നിൽ അർപ്പിതമായിരിക്കുന്നു. ലക്കടി ശ്രീ ശങ്കര ഓറിയൻ്റൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ കുട്ടികളോടും അധ്യാപകരോടും ഇതിൻ്റെ സംഘാടകരോടും എനിക്ക് ഈ അവസരത്തിൽ പറയാനുള്ളത്, ഇങ്ങനെ ഒരു ഹിന്ദി ദിനം ആഘോഷമായി ആഘോഷിക്കുന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രാധാന്യം, അതായത് എല്ലാ കുട്ടികളിലും എല്ലാവരിലേക്കും ഈ സന്ദേശം എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തയ്യാറെടുത്ത എല്ലാവരോടും ഈ അവസരത്തിൽ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. അതോടൊപ്പം ഈ ചടങ്ങിന് ക്ഷണിച്ച പ്രിയപ്പെട്ട എൻ്റെ സുഹൃത്ത് ജയലക്ഷ്മി ടീച്ചർ, ഈ കലാലയത്തിൻ്റെ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ, അതോടൊപ്പം മറ്റ് അധ്യാപകർ, കുട്ടികൾ എല്ലാവർക്കും ഈ ഹിന്ദി ദിനത്തിൽ എൻ്റെ ഹൃദയംഗമായ ആശംസ അറിയിക്കുകയാണ്. पालक्काड केंद्रीय विद्यालय से सेवानिवृत्त हुए श्री P बालकृष्णन जी की वाणी भी सुने। माननीय प्राचार्य महोदय, अध्यापक बंधुओं, प्यारे विद्यार्थी मित्रों, आप सबको
हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। यह बहुत खुशी की बात है, श्री शंकर संस्कृत हायर सेकेंडरी स्कूल लेकड़ी आज 14 सितंबर को हिंदी दिवस बहुत धूमधाम से मना रहे हैं। मेरी प्रार्थना है आपका यह सदुद्यम सर्वथा विजय मंगल हो जाए। मैं हिंदी भाषा का एक पंडित नहीं हूँ, सिर्फ एक हिंदी प्रेमी हूँ। इसलिए भाषा में होने वाली कमियों के लिए मैं पहले ही क्षमा मांगता हूँ और हिंदी भाषा के प्रमुखता पर मेरा सोच विचार आपके बीच प्रकट करना चाहता हूँ। हिंदी चिरकाल से ऐसी भाषा रही है जिसने मात्र विदेशी होने के कारण किसी शब्द का बहिष्कार नहीं किया। ये शब्द हैं आज़ाद भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के, अर्थात हिंदी ऐसी भाषा है जिसने अंग्रेजी, उर्दू, अरबी, फारसी जैसे भाषाओं के शब्द स्वीकारे और जन भावनाओं का आदर करते हुए इस भाषा में जोड़े गए। इसलिए हम बोल सकते हैं हिंदी एक उदार और जनप्रिय भाषा है। हिंदी भारत में सबसे ज़्यादा बोलने वाली भाषा है। फिजी, मॉरिशस, गयाना, सुरीनाम और नेपाल जैसे देशों की जनता भी हिंदी बोलते हैं। दुनिया के 615 मिलियन लोग हिंदी बोलते हैं और उसकी वजह से हिंदी दुनिया में तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। हमारे देश के बारे में बोलते हैं तो हिंदी हिंदुस्तानियों की पहचान है। हिंदी हमारी राष्ट्रीय अस्मिता एवं गौरव का प्रतीक है। हिंदी हमें भावनात्मक एकता के सूत्र में बांधते हैं। हिंदी भारत माँ के माथे की बिंदी है। इसी हिंदी के सम्मान में हर वर्ष 14 सितंबर को देश भर में हिंदी दिवस मनाया जाता है। महात्मा गांधी 1918 में आयोजित भारतीय हिंदी सम्मेलन में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए कहा। आज़ादी मिलने के बाद विचार विमर्श के पश्चात आखिर 14 सितंबर 1900 अब हम शिशंगरा ओरिएंटल हायर सेकेंडरी स्कूल के अभिमान पात्र पूर्व छात्राएं श्रीमती डॉक्टर अपर्णा और डॉक्टर संगीता के शब्दों में। नमस्कार, सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम सब जानते हैं कि भारत में हर साल 14 सितंबर का दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका यही कारण है कि वर्ष 1949 सितंबर 14 में स्वतंत्र भारत की संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा घोषित किया था। हिंदी भाषा के महत्व को जनता तक पहुंचाने तथा संपूर्ण भारत में हिंदी के प्रचार प्रसार को बढ़ावा देने के विशेष उद्देश्य से ही पूरे देश में प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के कार्यक्रम संपन्न होते हैं। हमारे संविधान के भाग 17 अनुच्छेद 351 में ऐसा कहा गया है कि राजभाषा हिंदी को इस तरह विकसित किया जाए कि वह भारत की विविध संस्कृति को व्यक्त करने में सक्षम हो। हम सब जानते हैं कि भारत एक बहुभाषा भाषी देश है। इस बहुभाषा भाषी देश के लिए हिंदी मात्र एक भाषा नहीं है, बल्कि भारत के विभिन्न भाषा भाषी जनता को तथा विभिन्न प्रादेशिक संस्कृतियों को आपस में जोड़ने का एक सुदृढ़ संपर्क सूत्र भी है। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि भारतीय संस्कृति की जड़ों में परिव्याप्त अनेकता में एकता की भावना को आत्मसात करने की दिशा में हिंदी भाषा हमेशा सक्षम रही है। इस बात का स्पष्ट प्रमाण हमारे स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में विद्यमान है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हिंदी भाषा ने सबसे आगे बढ़कर राष्ट्रीय एकता की भूमिका निभाई थी। आंदोलन में सक्रिय सभी राष्ट्रीय नेता, समाज सुधारक एवं साहित्यकारों की
यह दृढ़ अवधारणा थी कि स्वभाषा के अभाव में स्वराज की परिकल्पना बिल्कुल निरर्थक है। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने वर्ष 1916 में नागरी प्रचारिणी सभा में दिए गए भाषण में यह बात स्पष्टतः सूचित किया है। उनके शब्दों में, मैं समझता हूँ कि हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को पूरे देश के लिए एक आम भाषा की ज़रूरत है। एक आम भाषा का होना राष्ट्रीयता का महत्वपूर्ण तत्व है। वह आम भाषा ही होती है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। इसलिए यदि हम इस देश को एक साथ लाना चाहते हैं तो सबके लिए एक आम भाषा से बढ़कर दूसरी कोई ताकत नहीं हो सकती। आधुनिक हिंदी साहित्य के पुरोधा भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी निज भाषा और उसकी आवश्यकता को व्यक्त करते हुए लिखा है, निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति के मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के, मिटत नहीं ये को शूल। इस प्रकार राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय सभी राष्ट्रीय नेता देश के नवनिर्माण के लिए हिंदी के महत्व को समझते थे। यही कारण है कि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू प्रभृति हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने हिंदी को अखिल भारतीय स्वरूप प्रदान करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। वर्तमान समय में मीडिया, राजनीति, मनोरंजन, साहित्य, सिनेमा, विज्ञान इत्यादि विभिन्न क्षेत्रों में हिंदी का प्रचार प्रसार शीघ्र गति से बढ़ता जा रहा है। व्यापार, वाणिज्य आदि क्षेत्रों में भी हिंदी ही सबसे प्रचलित भाषा है आजकल। भारत जैसे बड़े देश में हर वर्ग को एक भाषा के सहारे संबोधित करने के लिए सिर्फ हिंदी ही स्वीकृत माध्यम है। बाजार से लेकर साइबर संसार तक इसका विस्तार देखा जा सकता है। तो आजकल पूरे विश्व में हिंदी के प्रति सकारात्मक वातावरण बन रहा है। ऐसे में हम सब के लिए आवश्यक है कि हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए भरसक प्रयास करें। हिंदी दिवस के इस शुभ अवसर पर हम केरल वासियों को यही प्रतिज्ञा लेनी चाहिए कि हम अपनी मातृभाषा मलयालम के साथ साथ राष्ट्रभाषा हिंदी के गौरव को भी बढ़ाने में कार्यरत होंगे। तो सबको एक और बार हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। धन्यवाद। आदरणीय गुरुजनों और मेरे प्यारे बच्चों, सबको मेरा प्रणाम। मैं हूँ संगीता। मैं आप लोगों के लिए परिचित नहीं हूँ, लेकिन मैं आपके गुरुजनों के लिए सुपरिचित है, क्योंकि मैं भी आपके स्कूल के एक पूर्व छात्रा हूँ। तो पहले मैं आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। तो आप लोग हिंदी भाषा के बारे में क्या क्या जानते हैं? क्या आप जानते हैं हिंदी दिवस क्यों हम मनाते हैं? नहीं तो सुनिए। तो भारत के संविधान में हिंदी भाषा को 14 सितंबर 1949 को देवनागरी लिपि के साथ भारतीय गणतंत्र की औपचारिक भाषा माना गया था। इस महत्वपूर्ण निर्णय को हर क्षेत्र में कायम करने के लिए राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के अनुरोध 1953 से 14 सितंबर को हर साल हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो बच्चों, आप लोगों से मुझे यही कहना है कि हिंदी भाषा का विकास हम नहीं करेंगे तो हिंदी भाषा का विकास नहीं हो सकता है। तो हमारे देश भारत अनेक भाषाओं, धर्मों और विभिन्न वेशभूषाओं के होते हुए भी विविधता में एकता का अनुरूप उदाहरण है। हिंदी भारत की अधिकांश जनता की भाषा है। भारत की राष्ट्रभाषा बनने की योग्यता हिंदी में है। सबसे पहले
हमारे गांधी जी ने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। देश की एकता और अखंडता को कायम रखने के लिए हिंदी को राष्ट्रभाषा और राजभाषा के रूप में प्रयोग करना चाहिए। इसलिए हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए आप सब प्रयत्न करो, ठीक है। हिंदी भाषा के विकास के लिए हमें एक साथ प्रयत्न करें। तो आप सब अंग्रेजी भाषा के साथ साथ हिंदी को नहीं छोड़िए। आप सब ठीक तरह से हिंदी पढ़िए और टीवी और समाचार पत्रों में भी हिंदी देखिए और हिंदी पढ़िए, ठीक है बच्चों। तो जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद। अब हमारे प्रिय छात्रों के कुछ कार्यक्रम देखें। नमस्ते। हिंदी भाषा भारत की राष्ट्रभाषा है। 14 सितंबर 1949 में हिंदी दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य हिंदी के सम्मान और महत्व को लोगों तक पहुंचाना है। हिंदी भाषा संसार भर में 4 स्थान पर सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। संसार भर में 150 से भी ज्यादा विद्यालयों में हिंदी भाषा विषय के तौर पर पढ़ाई जाती है। नमस्ते शब्द हिंदी भाषा का सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाला है। इंटरनेट पर हिंदी को बहुत तेजी है बढ़ रही है। हिंदी भाषा हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश की राज्य भाषा भी है। धन्यवाद। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। देवनागरी लिपि में भाषा, जन जन के मन की अभिलाषा। देवनागरी लिपि में भाषा, जन जन के मन की अभिलाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। पामागा पामागा
पमगा तपमगरे मगरे 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 पमगरे सा पमग 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 तपमगरे मगरे 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 पमगरे सा। भारत की सारी भाषाएं इस भाषा की बहनें हैं। भारत की सारी भाषाएं इस भाषा की बहनें हैं। मुगल राष्ट्रभाषा का सिर पर शोभित इसके गहने हैं। मुगल राष्ट्रभाषा का सिर पर शोभित इसके गहने हैं। पढ़े वही जो दिखे, सुने वही जो लिखे, पढ़े वही जो दिखे, सुने वही जो लिखे। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। नमस्कार। भारत एक विशाल देश है। यह अनेक भाषाएं बोली जाती है। इनमें से एक प्रमुख भाषा है हिंदी। हिंदी भारतीय परिवार की भाषा है। भारतीय आर्य भाषा और में हिंदी का स्थान प्रमुख है। केंद्र सरकार ने 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा के रूप में जगह दी है। यो भाषाएं हैं हिंदी, असमी, उर्दू, कन्नड़ा, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाल, ओडिया, पंजाबी, संस्कृतम, संताली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, बोटे, तोगरी, बंगाली और गुजराती भारतीय संविधान के राजभाषा है, जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। भारत के 11 राज्यों की राजभाषा की है हिंदी। धन्यवाद। नमस्ते। हम है हिंदुस्तानी, हिंदी भाषा हमको प्यारी है। हम है हिंदुस्तानी, हिंदी भाषा हमको प्यारी है। इस भाषा पर सारी दुनिया वारी 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 है। इस भाषा पर सारी दुनिया वारी 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 है। हम है हिंदुस्तानी, हिंदी भाषा हमको प्यारी है। हम है हिंदुस्तानी, हिंदी भाषा हमको प्यारी है। चारों वेदों के पन्नों में जो गूंजे अविराम, चारों वेदों के पन्नों में जो गूंजे अविराम, राम कृष्ण की वाणी है और गीता का ज्ञान। राम कृष्ण की वाणी है ये और गीता का ज्ञान। इसके शब्द अर्थों की शोभा न्यारी 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 है। हम है हिंदुस्तानी, हिंदी भाषा हमको प्यारी है। हम है हिंदुस्तानी, हिंदी भाषा हमको प्यारी है। गंगा सी पावनदा जिससे है शिखरों समान, गंगा सी पावनदा जिसमें है शिखरों समान। उस भाषा है हम भाषी है हमको अभिमान। उस भाषा के हम भाषी है हमको अभिमान।
हम ना भूल सकेंगे इसको जब तक जान हमारी है। हमें हिंदुस्तानी हिंदी भाषा हमको प्यारी है। हमें हिंदुस्तानी हिंदी भाषा हमको प्यारी है। ऋषियों की वाणी ये भाषा कवियों का संवाद। ऋषियों की वाणी ये भाषा कवियों का संवाद। प्रेम भाव का पाठ पढ़ाता हर पुस्तक का ज्ञान। प्रेम भाव का पाठ पढ़ाता हर पुस्तक का ज्ञान। इसकी खुशबू से महकी ये क्यारी 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 है। हम है हिंदुस्तानी हिंदी भाषा हमको प्यारी है। हम है हिंदुस्तानी हिंदी भाषा हमको प्यारी है। इस भाषा पर सारी दुनिया वारी 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 है। इस भाषा पर सारी दुनिया वारी 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 है। हम है हिंदुस्तानी हिंदी भाषा हमको प्यारी है। हम है हिंदुस्तानी हिंदी भाषा हमको प्यारी है। हिंदी हमको प्यारी है, भाषा हमको प्यारी है। ऋषियों की वाणी ये भाषा कवियों का संवाद। ऋषियों की वाणी ये भाषा कवियों का संवाद। प्रेम भाव का पाठ पढ़ाता हर पुस्तक का ज्ञान। प्रेम पाठ का पाठ पढ़ाता हर पुस्तक का ज्ञान। इसकी खुशबू से महकी ये क्यारी 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 है। हमने हिंदुस्तानी हिंदी भाषा हमको प्यारी है। हम है हिंदुस्तानी हिंदी भाषा हमको प्यारी है। इस भाषा पर सारी दुनिया बारी 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 है। इस भाषा पर सारी दुनिया बारी 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 है। हम है हिंदुस्तानी हिंदी भाषा हमको प्यारी है। हम है हिंदुस्तानी हिंदी भाषा हमको प्यारी है। हम है हिंदुस्तानी हिंदी भाषा हमको प्यारी है। हिंदी हमको प्यारी है, भाषा हमको प्यारी है। हिंदी हमको प्यारी है। धन्यवाद।
एक भाषा है आशा भरी जिसका नाम हिंदी है। हिंदी केवल जुबा नहीं, देश के माथे की बिंदी है। नमस्कार। आज हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर आप सबको हार्दिक अभिनंदन और बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। हिंदी हमारी दिल की भाषा है जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, संसद से लेकर सटकोम और साहित्य से लेकर सिनेमा तक हर जगह संवाद के सबसे बड़ा पुल बनकर सामने आती है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने निर्णय लिया था कि भारत की राजभाषा हिंदी ही होगी। इस निर्णय को महत्व देने के लिए और हिंदी के उपयोग को प्रचलित करने के लिए साल 1953 के उपरांत हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी में राजभाषा घोषित होने के लिए एक बहुत लंबा सफ़र तय किया। सोशल मीडिया और टेक्निक के इस युग में भी हिंदी की नींव हीली नहीं है, बल्कि ज़्यादा प्रखर होकर और निखर कर हिंदी सामने आई है। दरअसल हिंदी अपने आप में संपूर्ण है, अपने आप में गौरवमयी भाषा है। मैं जो आज कुछ भी हूँ, मुझे हिंदी ने बनाया है। हिंदी मेरी मातृभाषा है, हिंदी मेरा हमसाया है। हिंदी का गौरव आज पूरी दुनिया में बढ़ रहा है। हिंदी का शौक़ आज दुनिया में फैल रहा है। हिंदी की खुशबू से अक्षरों की बगिया महक रही है। हिंदी सिर्फ हमारी भाषा नहीं, हमारी पहचान भी। तो आइए हिंदी बोले, हिंदी सीखे और हिंदी सिखाए। धन्यवाद। हिंदी के प्रशस्त कवि श्री जयशंकर प्रसाद जी की मधुरदु कविता। अरे आ गई है भोली सी यह मधुर दो दिन को, छोटी सी कुड़िया में रज दूं नई व्यथा साथिन को। वसुधा नीचे ऊपर नभ हो, नीड अलग सबसे हो। छाड़ कंड के चिर पतझड़ में भागो सूखे तिनको। आशा से अंगूर चू लेंगे, पल्लव पुलकित होंगे। मेरे किसलय काल खुभव यह आह गले का किनको। सिहर भरी कांपती आवेंगे मलयानिल की लहरें। चुंबन लेकर और जगाकर मानस नयन नलिन को। अरे आ गई है भोली सी यह मधुर दो दिन को। छोटी सी कुड़िया में रज दूं नई व्यथा साथिन को। अंत में हमारे स्कूल के शिक्षक श्रीमती स्मिता जी, श्री कृष्ण कुमार जी, श्रीमती NK जया जी के शब्दों में। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के शब्दों में, राष्ट्रभाषा के बिना किसी भी राष्ट्र गूंगा होता है। संविधान ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया। हिंदी भारत के सभी देशों में बोली जाने वाली भाषा है, इसीलिए हमारी संपर्क भाषा है। हिंदी बहुत सरल है, पढ़ने में आसान है। हिंदी के बिना राष्ट्र गूंगा होता है। भारत के विकास के लिए हिंदी का विकास अनिवार्य है। हिंदी दिवस के इस अवसर पर मैं अपने सारे बच्चों को हिंदी भाषा दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ। जय हिंद। नमस्ते। आज हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर आप सबको हार्दिक अभिनंदन और शुभकामनाएं। आज सितंबर 14 हिंदी दिवस है। इस अवसर पर
सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। जय हिंद, जय हिंदी। श्री शंकरा ओरिएंटल हायर सेकेंडरी स्कूल के हिंदी दिवस समारोह के कार्यक्रम समाप्त। धन्यवाद।